graphs regarding to that. Okay. So other graphs which will be given in your textbook. देख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक, ऐसा कुछ नहीं कि मैं चीजों को बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, बिल्कुल सही है, बट टेक्स्ट बुक को ही करा रहा, उतने में ही मेरा आईआईटी और नीट निकल सकता है खूब आराम से, बट अच्छे से किया जाए तो। कल हम लोगों ने देखा था, कल वाले ग्राफ को भी आई एम रिपीटिंग द थिंग्स, रेट इधर डिक्रीज हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो दिस इज फॉर द प्रोडक्ट, दिस इज फॉर द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वाला विल बी फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना, and this one will be for backward reaction, but at this particular moment of time यहाँ पे क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, because at equilibrium rate of forward reaction and rate of backward reactions are equal. Rate of forward reaction and rate of backward reactions are equal. बोलो कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। उसके बाद लेट अस सी द अदर ग्राफ्स प्लीज। इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम आहे का? नो सर। No, sir. No, sir. Okay, so this is concentration versus time. If you are taking concentration versus time, again product का concentration will increase, reactant का concentration will decrease. This might be possible कि when equilibrium is established, देखो यहाँ पे क्या होगा, कल मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि at equilibrium concentration of reactants and concentration of products are constant. I am saying constant. Okay, I am saying constant. ये इसके पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस के, तो कांस्टेंट हो गया। Here equilibrium is established, तो ये क्या हो गया, this is reactant, this is product. Concentration of reactant is greater than concentration of product. So please write down sentence below this graph. लिखो लिखो, at point A, below this graph, at point A, concentration of, 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 at point A, concentration of reactants and products are constant. Concentration of reactants and products, concentration of reactants and products are constant. Concentration of reactants and products are constant, and concentration of reactant is greater than concentration of product. तो फिर से रिपीट करेंगे। हाँ, at point A, concentration of reactants and at point A, concentration of reactant and products are constant.
उसके बाद सर concentration of reactants and products are constant and concentration of reactant is greater than concentration of product. And concentration of reactant is greater than concentration of a product. And concentration of reactant is greater than concentration of product. ठीक. Now the next graph. C versus T. T is the time. Is this one. यहाँ पे क्या हो गया? इसके बाद now graph is parallel to x-axis. Suppose this is point A where equilibrium is established. ठीक. इस वाले ग्राफ के नीचे लिखो. Please draw the graph and write a sentence. Draw the graph and write a sentence, please. Please, लिखो. लिखो at point A equilibrium is established. At point A equilibrium is established. At point A equilibrium is established. At point A equilibrium is established and concentration of product is greater than concentration of reactant. And concentration of product is greater than concentration of reactant at equilibrium. Okay. Concentration of product is greater than concentration of reactant. कुछ भी हो सकता है. Now the next one, जो तुम लोगों ने कल बोला था, क्या कल बोला था? कि इक्वल होंगे. हो भी सकता है. This might be possible, but not always. But not always. This is for reactant and this is for the products. Please write. यहाँ पर फिर से मैंने लिख लिया A. लिखो at point A equilibrium is established. 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 And equilibrium concentration of reactant and product are same. And equilibrium concentration of equilibrium concentration of
reactants and products are equilibrium concentration of reactants and products are equal. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तुम्हारे और तुम मेरे ऊपर नहीं, आई मीन रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा. हो गया? सर Yes. जो राइट साइड का दूसरा ग्राफ है उसमें जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है लाइंस वहाँ पे इक्वल होगा ना? कहाँ पर? ये वाले? हाँ, सर. यहाँ पे दोनों इक्वल है जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सर तो फिर मतलब वो इक्वल लिखना है या कांस्टेंट लिखना है? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है ना, मैंने बोला इक्विलिब्रियम पर एस्टेब्लिश. इस जगह पे इक्विलिब्रियम क्या है? कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट. ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं है, दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम पॉइंट. सर तो वो पॉइंट कैसे निकाल? मैंने पॉइंट ए कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है ना, देखो. ओके. टॉकिंग अबाउट पॉइंट ए, तुम इंटरसेक्शन की बात कर रही है. यस सर. मैंने लिखवाया है एट पॉइंट ए इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. यस सर, गॉट इट. जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर अभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड नहीं हुआ है. ओके. यस सर. और भाई किसी का प्रॉब्लम प्लीज? नो सर. बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको भी है डाउट बोलो. Is there any problem till now? Shall I proceed forward? Yes, sir. Yes, very good. Chalo. Now the next one is हमेशा हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट ऑब्वियसली ये जीरो से स्टार्ट होगा, है ना. प्रोडक्ट जीरो से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पहले से बनना शुरू हो जाए. रिएक्टेंट आया नहीं, प्रोडक्ट अपने से बन जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बट यहां पर ये देखो, रिएक्टेंट जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है. अगर रिएक्टेंट जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इतना कंसंट्रेशन पहले से है. क्या ये ग्राफ करेक्ट है क्या? दिस इज पॉसिबल और नॉट? इज दिस पॉसिबल और नॉट? Possible है. बोलो भाई, इज दिस पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल है. श्रावणी बोले हैं, अभिदा बोले हैं. हाँ सर, पॉसिबल है सर. पॉसिबल है सर. हाँ, पॉसिबल पॉसिबल है. सर पॉसिबल है. बोलो भाई, बोले पॉसिबल है. तो बिल्कुल पॉसिबल है. यार क्यों पॉसिबल है? सपोज तुमने ए बी को बनाया, भाई 2 मोल में पहले से ही रख दो, हो सकता है. समझ में आ रहा है? 2 मोल में पहले से ही रख दो उसमें, कंटेनर में, then it is possible. Definitely it is possible. Definitely it is possible. सर ये समझ में नहीं आया. कंटेनर में तूने ए लिया और आधे घंटे के बाद बी बनता. इनिशियली कुछ नहीं होना चाहिए था, सपोज 3 मोल, दिस इज 0. और जब 2 मोल खत्म हो गया, यानी 1 मोल खत्म हो गया, तब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया. चलो ये तो समझ में आता है. बट भाई मैं पहले से ही 0.5 मोल ले लूं तो क्या प्रॉब्लम है कंटेनर में? हाँ या ना? Yes, तेरे sir. मेरे बीच में इक्विलिब्रियम होगा जब मैं, तुम्हारे पास 0 पैसा था, मैंने तुमको 100 रुपया दिया, हैप्पी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड. बट पता चला कि तेरे पॉकेट में 50 रुपए पहले से ही है. पहला कंडीशन, तेरे पॉकेट में कुछ भी नहीं था, 100 रुपया पर एस्टैब्लिश हो गया इक्विलिब्रियम.
दूसरी बार 50 रुपया तूने अपने पॉकेट में पहले से ही रखा था, सिर्फ 50 रुपया ही दिया और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। ये वैसा है। ओके, काई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। है ना? कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट में बी प्रेजेंट, सॉरी प्रोडक्ट में प्रेजेंट इनिशियली आल्सो। तो जो पीछे 3 ग्राफ थे अब इधर भी हो सकते हैं वो सब। तो अभी तक ये वाले ग्राफ्स अभी तक नहीं आए हैं, पीछे वाले जो हर जगह में मिलेंगे। सो प्लीज राइट डाउन अ स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन अ स्टेटमेंट। लिखो, लिखो इनिशियली प्रोडक्ट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, initially product is already present, initially product is already present, initially product is already present, initially product is already present and at equilibrium, and at equilibrium concentration of, and at equilibrium concentration of reactant is greater than concentration of product। ऊपर देखो और उसको डिस्क्राइब करो। concentration of reactant is greater than concentration of product। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है किसी को भी, और अगर किसी को डाउट है he may tell me, okay? Yes, without any hesitation please tell me। Sir, can you please repeat this statement? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि initially product is already present and at equilibrium, ये देखो concentration of reactant is greater than concentration of product। ठीक? Okay, sir, got it. Yes। So let us move to next one, please। Next heading, law of mass action। 200% श्योर हूं बोर्ड में आएगा ही आएगा। बोर्ड आई मीन जब भी 11th क्लास का एग्जाम होगा तुम्हारा। देखो मैं पहले से ही बता करके चल रहा, कौन बोर्ड में, कौन नीट में, कहाँ पे IIT नीट सभी जगह। ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? चलो, नोबडी विल राइट एनीथिंग नाउ, नोबडी विल राइट एनीथिंग नाउ। तुमने कोई भी रिएक्शन ले लिया, whatever it may be, ओके? ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कोई कुछ नोट नहीं करेगा। एक्चुअली ये पहले से मैं बोलूं, ये बोल रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन। मेरा वॉइस लो है भाई, बोल रहे हैं ऐसा है क्या? No, sir. No, sir. नहीं सर। अनुश्री फिर से ज्वाइन कर इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। तो रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं रिप्रेजेंट किया करूंगा स्मॉल r से, है ना? अगर याद हो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में भी रेट को मैंने r से, स्मॉल r से डिनोट किया था। उसके बाद मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ A एंड B का प्रोडक्ट। अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा और सब बताऊंगा, कोई कुछ अभी पूछेगा भी नहीं। जब मैं बता लूंगा तो पूछेंगे।
कोई भी रेट होता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज के, और ये क्या होगा, हमेशा वेरी करेगा रिएक्शन टू रिएक्शन। अब नाउ स्क्वायर ब्रैकेट में तूने क्या लिखा है, दिस इज नथिंग बट, जहां पर तुम कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में अब लिखा करूंगा, ठीक। व्हाट इज बी, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन फ्यूचर पूरे होल केमिस्ट्री में वी विल राइट लाइक दिस वन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हो गया उसका कंसंट्रेशन। नाउ आई टोल्ड यू अ वर्ड दैट इज एक्टिव मास ऑफ ए को ही मैं कंसंट्रेशन बोला कर रहा हूं अप टू दिस लेवल, जेई मेंस लेवल, नीट लेवल, ऐसा। हम लोग इंजीनियरिंग करने के लिए जाएंगे, आईआईटी, केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह स्पेशली, या जो भी कोई भी इंजीनियरिंग, तो वहां पे एक्टिव मास का मतलब हुआ करता है, कोई कुछ नोट ना करेगा, मैंने पहले ही बोला, is activity of that chemical substance A and concentration of A. What is A? A is activity. ये जितने भी रिएक्शंस होंगे सभी का एक्टिविटी दिया होता है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक्टिविटी ऑफ केमिकल, बट मैंने लिखा हियर, अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा, मैंने पहले ही बोला, हियर एक्टिव मास इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन, ही ले लिया मैंने, एक्टिव मास को ही मैंने कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो इन थ्रू आउट केमिस्ट्री इफ इट इज सेइंग व्हाट इज एक्टिव मास, यू कैन डायरेक्टली राइट कि दिस इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, जो कि राइट नहीं है। क्यों? इट इज एक्टिव मास इनटू कंसंट्रेशन, एक्टिविटी इज एक्टिव मास इनटू कंसंट्रेशन, बट हम लोग up to this particular stage of the level we will write directly active mass equals to concentration of the chemical substance. तो अब बोलो पहले ये समझ में आया क्या, ये वाला एक्टिविटी ऑफ ईच एंड एवरी केमिकल सब्सटेंस। सपोज मैंने H2 ले लिया, तो H2 का एक्टिव मास इक्वल्स टू एक्टिविटी ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो तुमको एक्टिव मास को ही कंसंट्रेशन लेकर के चलना है थ्रू आउट चैप्टर, वही होता है यहाँ पर। तो पहले प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, उसके बाद मैं ये लिखूंगा, उसके बाद मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, लिखो। लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, according to law of mass action, according to law of mass action, rate of any reaction, rate of any reaction rate of any reaction is directly proportional to product of
active masses of reactants product of active masses of reactants product of active masses of reactants and coefficients will be its respective power and coefficients will be its respective power and coefficients will be its respective power and coefficients will be its respective power. अब लिखो नीचे पूरा जितना भी हमने लिखा है और लिखने के बाद मैं फिर से समझाता हूं ओके डोंट वरी मैं एक बार नहीं 5 बार समझाएगा सर ये सब नोट डाउन करना है ना यह सब नोट करता हूं पहले इसी का नोट कर सर रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग होने लग गया हो गया सर थैंक यू हो गया वेरी गुड चलो आ जाओ लिखो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस सपोज यू आर राइटिंग N2 plus 3H2 is giving 2NH3. So what will be the rate of the reaction? K into concentration of N2 into concentration of H2. अब मैं डायरेक्ट concentration बोलने लग गया एक्टिव मास मैंने बोला था एक्टिव मास इज concentration. Active mass is concentration now. Suppose you are having CH triple bond CH plus 2H2 is giving C3, no sorry, C2H6. So rate is directly proportional to H2 ka square, that is C2H2 also. K is constant, proportionality constant, that is called as rate constant, you can say also. This is for the practice. N2 के पावर 2 क्यों होगा स्नेहल, ये बता। N2 के आगे 1 लिखा है, N2 समोर 1 लेला है, ओके। सर अगर N2 समोर 1 लेला है, सही बोला क्या मैंने? हाँ सर। अरे वाह, हाँ बोलो बोलो बोलो, और किसी को कुछ बोलना है? नहीं है तो प्लीज लेट अस राइट डाउन द हेडिंग, प्लीज राइट डाउन द हेडिंग, प्लीज राइट डाउन द हेडिंग। लिखो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी बोर्ड में आएगा तुम्हारे पास, बोर्ड के लिए ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोर्ड में आएगा, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर ये हेडिंग है ना? यस हेडिंग है, डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। साइली जल्दी कर।
सर यस, यहाँ जो k है वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना? नहीं, दिस इज रेट कांस्टेंट, ये ओके लिख लो, सर। दिस इज रेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या होना जरूरी है, यू आर सेइंग इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शन मस्ट बी मूविंग इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड। कहां मूव कर रहा है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये है ना? हाँ ओके सर। हाँ, इक्विलिब्रियम के लिए सपोज यू आर राइटिंग दिस वन, या इन जनरल ले लो बेटा, व्हाट इज इन जनरल वन, ओ हो 1 मिनट, अरे मैं मुझसे बाय द वे पूरा गलती से रब हो गया, अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ब्रैकेट में लिख लो Kc। व्हाट इज Kc? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा है इसलिए Kc। नाउ इन जनरल रिएक्शन, सो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, लिखो एनी जनरल रिएक्शन, any general reaction, any general reaction, any general reaction which is following reversible reaction, any general reaction which is following reversible reaction, reversible reaction and at equilibrium, and at equilibrium and at equilibrium and at equilibrium and at equilibrium and at equilibrium, concentrations of A, B, C, D are at equilibrium, concentrations of A, B, C, D are ऐसा लिख लिया, स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर ब्रैकेट C स्क्वायर ब्रैकेट D, सर ठीक। एंड एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस के पीछे पहले क्या था? हाँ, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A, B, C, D R ऐसा लिख लिया। नहीं सर, उसके पहले क्या था? उसके पहले का बोलो भाई कोई तो। Any general reaction which is following reversible reaction and at equilibrium concentration of A, B, C, D R ऐसा लिख लिया। अब लिखा लो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लिखना बंद करो सभी लोग, ये क्या है फॉरवर्ड, ये क्या है बैकवर्ड, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन rate will be, rate of forward reaction is directly proportional to reactant के लिए, सॉरी फॉरवर्ड के लिए कोई बताएगा क्या रिएक्टेंट कौन सा है, A and B. and B. what is A the and B. coefficient, A raised coefficients of A and B, small a and small. Small a and small b. A and small it may be 2 3 4 5 whatever it may be, this is the general one। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो KF आया,
rate constant for forward reaction. Okay, rate constant for forward reaction. तुम चाहो तो लिख लो ऐसा, kf equals to, कोई कुछ नोट नहीं करेगा, ऐसे कोई कुछ नोट ना करेगा, rate constant of forward reaction. Similarly, for backward reaction, rate of reaction according to, मैं देख लो पूरा बहुत अच्छे से लिखवा के कर रहा हूं, according to law of mass action. डायरेक्ट बोर्ड में लिखोगे तो 0 नंबर पाओगे. कोई मुझे बताएगा क्या बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन से हैं? C and D. C and D. C and D. C and D. Who will tell me the coefficients of C and D? Small c and small d. C and small d. Very good. तो R, सॉरी उधर RB लिखना चाहिए, मैंने RF लिखा है. Now this is RB. RB is KB. C के पावर C, D के पावर D. This is second. पहले यहां तक सभी लोग लिखो प्लीज. Everyone write down. Everyone please write down. Everyone please write down fast. Backward reaction. At equilibrium, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. At equilibrium, concentration, sorry, rate of forward, rate of backward reaction are equal. So from first and second equation, you will get Kf, concentration of A, concentration of B के power B, Kb, concentration of C के power C, D के power D. तो Kf upon Kb equals to concentration of C, concentration of ऐसा Kf upon Kb. This is called as equilibrium constant Kc. C का मतलब हो गया in terms of concentration. This is equilibrium constant in terms of concentration. Please note down now. Please note down. Please note down. ये तुमको डिराइव करने के लिए तुम्हारे बोर्ड में आ सकता है.
Done, sir. Done. Very good. Done, sir. So let us move to the सर एक मिनट. yes, yes. Done. सभी लोगों का done. Now, just for the practice, please. लिखो. Write down expression. Yes. Write down. Write down expression for write down expression for equilibrium constant. रेवती तुमको रिमाइंड करना पड़ता है. इसके पहले रेगुलरली क्लास अटेंड करती थी. तो ये ऐसा है. इसको प्रैक्टिस के लिए लिखो सभी लोग. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ Kc. प्रैक्टिस के लिए लिखो, बाद में मैं सब बताता हूं. सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है कि फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड मस्ट बी प्रेजेंट. ऐसा. प्लीज राइट डाउन. Hello. यस. अपने फोर्थ एक्सप्रेशन में ये बोलो. अपने फोर्थ इक्वेशन में NH4 SH अमोनियम सल्फाइड. SH सॉलिड है और H2S इज गैस. सब लोगों ने Kc का एक्सप्रेशन लिख लिया, तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं. Sir, 1 minute. डन. Done, sir. Sir, 1 minute. Answer. Done, sir. Done, sir. चलो मुझसे अब मैच कराओ. हाँ सभी लोग. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज concentration of NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय concentration of H2 का क्यूब इनटू concentration of N2. चौगले. स्नेहल. ठीक है. कोएफिशिएंट एक है तो एक ही रखेंगे पावर.
2 वाला सबस्क्रिप्ट था, N2 को पावर में नहीं रखेंगे, इसको पावर में नहीं, इसके आगे वाला पावर जाता है। नाउ concentration of CO2, concentration of H2O का स्क्वायर डिवाइडेड बाय CH4 एंड O2 का स्क्वायर। सब लोगों ने यही लिखा है? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो सभी लोगों का रॉन्ग होगा कैसे। ठीक, मैंने जानबूझ करके नहीं बताया था। हम लोग concentration of liquid and solid, concentration of liquid and solid we are considering 1 with respect to gas। क्यों? कंसंट्रेशन मुझे कंसीडर करना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ एक्टिव मासेस वगैरह की वजह से ऐसा लिखते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे, वही बहुत है। तो सॉलिड एंड लिक्विड। तो अब देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ गैस का कंसीडर करना है, तो इसका हो जाएगा 1। तो सभी लोग प्लीज राइट डाउन, एक प्यारा सा स्टेटमेंट लिखना है। प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट। लिखो लिखो एक्टिव मास ऑफ या कंसंट्रेशन, एक्टिव मास ब्रैकेट में कंसंट्रेशन, जबकि दोनों इक्वल नहीं है। दिस इज रॉन्ग वन अगर मैं ऐसा लिखता हूं, लेकिन फिर भी लिखो एक्टिव मास ऑफ solids and liquids are considered as active mass of solids and liquids are considered as 1। Sir, can you repeat? Active masses of solids and liquids are considered as 1 with respect to वेदांत बोल रहे हैं उनके यहाँ पे उधर क्रैकर्स बज रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ सर। ओके, अब क्या किया जाए? लिखो जैसे तैसे करके, कान के पास लगा करके, ठीक है ना? एक्चुअल में बोले ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है अभी तक, ठीक है ना? एक्टिविटी के लिए वो तो इंजीनियरिंग में जाएगी तो लर्न करेगी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, अगर केमिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह लेती है तो बिल्कुल होता है। सर पर 1 कैसे होगा? लिखो पहले, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज कंसीडर्ड एज 1 विथ रेस्पेक्ट टू गैस। अगर एक केमिकल एक रिएक्शन में सॉलिड लिक्विड गैस सब है तो सिर्फ गैस का कंसीडर करेंगे। ठीक, और लिक्विड एंड सॉलिड होगा तो लिक्विड का कंसीडर करेंगे, सॉलिड का 1 ले लेंगे। उसके नीचे लिख लो सिमिलरली if any reaction is containing solid and liquid only, then active mass of solid is considered as 1 with respect to liquid। सर लिक्विड ओनली के बाद क्या है?
लिक्विड बनने के बाद सर स्टेटमेंट बोल लो सब लोग। Then active mass of solid is considered 1 with respect to liquid. थैंक यू। हाँ भाई, अब देखो थर्ड रिएक्शन में क्या है? CO2 is gas, but CaCO3 and CaOH is Solid. solid. कितना ले लेंगे? 1. 1. So its Kc will be simply CO2. बस. Same thing here also. Now I am writing directly. We are considering concentration of NH3 and concentration of H2S because they are gas, others are solid. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है लोगों को, है ना? Yes, sir. यस। अभिदा बिल्कुल कंसीडर करते हैं सॉलिड का गैस के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? No, sir. Sir, कहीं डाउट आएगा? sir, can you show last slide for 1 minute? हाँ सर 1. यस श्योर। अब तुम बताओ, अगर ये चैप्टर लोगों ने ये टॉपिक आज का लेक्चर मिस कर दिया, अब मैं थ्रू आउट केमिस्ट्री केसी की ही बात करता रहूंगा। थ्रू आउट चैप्टर सिर्फ और सिर्फ केसी। तब क्या करोगे? ठीक है ना? आगे बढ़ा जाए? Yes, sir. Done. Done, डन। sir. आ जाओ। चलो भाई, अब हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड। ठीक है ना? तो मैंने लिख लिया कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Calculation of equilibrium constants. Calculation of equilibrium constants. चलो भाई आ जाओ, बिल्कुल छोटे प्रॉब्लम में लेकर के चलता हूं। ठीक है ना? लिखो। कंसंट्रेशन, क्योंकि मुझे सभी का केमिकल सब्सटेंस का एक्टिव मास नहीं दिया, वो एक्टिविटी नहीं दिया है चैत्राली, ये गलत नहीं है। अब यही कंसीडर करो हमेशा। ठीक है ना? Okay, sir. हाँ चलो लिखो फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। Find out equilibrium constant of the reaction. Find out equilibrium constant of the reaction. Find out equilibrium constant of the reaction if
if 1 mole of reactant is present in 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 V liter, वॉल्यूम V बोला है, V liter of container, V liter of container at any temperature T. रिएक्शन क्या है? PCl5 is converting into PCl3 and Cl2. चलो अब कोई कुछ नोट ना करेगा. At any time t equals to 0, इनिशियली कितना था कंटेनर में? 1 मोल, 0 and 0. अब देखो at any time t equals to t, ये धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट होगा, एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा एंड concentration of product is slowly increasing. Concentration of product is slowly increasing. तो suppose at equilibrium, सीधे सी बात लिखो कि कितना खत्म हो गया है, कितना खत्म हो गया? X. कितना खत्म हुआ? X. X. ये कितना बनेगा? X और X. क्यों? ये देखो 1 मोल इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल PCl3, 1 मोल Cl2. तो 1 में से अगर x मोल खत्म हुआ तो x मोल एंड x मोल बनाएंगे, है ना? यहां तक किसी को डाउट है क्या? प्लीज, तब तो मैं आगे बढ़ूं. No, sir. सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर अरे, सकते हैं क्या? हाँ सर फिर से मैं फिर से एक्सप्लेन करता. मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया क्या? x मोल converted into प्रोडक्ट, तो रिमेनिंग कितना रहेगा? x मोल PCl5 लिख दूं, रिमेनिंग कितना रहेगा बोलो? रिमेनिंग PCl5 1 minus x. x 1 minus x. हाँ, तो 1 मोल PCl3 बनाता था, तो x मोल कितना बनाएगा? x मोल. x मोल. X हाँ mole. है ना? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. ये x मोल, ये x मोल. ये तो क्या है? दिस इज मोल्स. बट मुझे क्या लिखना है? कंसंट्रेशन. व्हाट इज कंसंट्रेशन रे बाबा? मोलरिटी. याद आया? व्हाट इज मोलरिटी? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. तो फिर क्या है? व्हाट इज Kc? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. concentration of PCl3 at equilibrium into concentration of, एक मिनट, मैंने ऐसा बना लिया. Cl2. Yes. Cl2. concentration of, Cl5. नो, प्रोडक्ट का पहले लिखना है, डिवाइडेड बाय concentration of PCl5. PCl5. Now put the value. X upon V, 1 minus x upon V.
So this is x square upon v square, ऊपर चला गया 1 minus x, v कट गया, x square 1 minus x. Any problem till now? No, sir. No, No, sir. sir. नहीं. अरे श्रावणी तेरा 1.79 कहां से आया? 79 कहां से आ गया? मैंने कुछ दिया ही नहीं है. चलो प्लीज नोट डाउन. Please note down fast.